Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तत्ते अर्हतमो नमः स्तुतिकर्म पूजः कर्मास्मृति चरणयोः श्रवणं कथायाम् संसेवया त्वयि विनेति सदङ्गाय किम् संसेवया त्वयि विनेति सदङ्गया किम् भक्तिं जनः परमहंस गतो लभेता. Therefore, O Supreme Personality, God, the best of all the persons to whom prayers are offered, I offer my respectful obeisance unto you, because without rendering 6 kinds of devotion service unto you, offering prayers, dedicating all reserves of activities, worshipping you, working on your behalf, always remembering your lotus feet and hearing about your glories, who can achieve that which is meant for the Paramahamsas? So 2 things here we can elaborate. Study of the Vedas and Bhakti as ultimate yoga. Prabhupada says very nicely here, yoga means Bhakti yoga. Just like they started Yoga Day. If they just word yoga, it means Bhakti Yoga Day. Yoga means linking. Linking means bhakti. Linking with God means bhakti. But when there is a contamination of karma, when fruitive activities are predominating in the mind of the person, there is so much desire for sense gratification along with connection to the Lord, that becomes karma yoga. Otherwise, yoga is pure, linking with the Lord, bhakti yoga. And Prabhupada says yoga means it should lead to Shri Shri Radha Govinda ki, Shri Shri Gauranitai ki. So yoga should lead to connection to the Lord. If it is not leading and contamination of fruitive activities stagnating it, then you call it karma yoga. Correct? It has stopped now. Otherwise it should have gone till the Lord. The same way, when the contamination of speculation and some desire to know things which are disconnected from the Lord is contaminating bhakti, that becomes jnana yoga. Very clear? Very simple. Otherwise, yoga is bhakti yoga. So mostly people think when yoga, they think asanas. Yoga means bhakti, offering ourselves to the Lord. Default meaning is offering ourselves to the Lord. Contamination is karma yoga and jnana yoga. But people are mostly interested in so many other yogas. Today I was reading in the morning about Rishabhadeva. And Rishabhadeva goes to some forest and he starts following what is known as Jada Yoga. Another yoga, Jada Yoga. And so much so that he is pulling his hairs and he is lying down, passing streets naked, all hairs are grown. So Prabhupada said, don't imitate him till you can turn your stool into fragrant. Don't imitate it. योगा मतलब भक्ति योगा. अभी लोग क्या जनरली सोचते हैं, योग का मतलब लोग तो कुछ आसन रहते हैं. आप किसी के पूछे योग मतलब आसन है, बोलो आज योग का क्लास है मतलब
आज आसन का क्लास होगा, करेक्ट? ये जनरली लोग ऐसा सोचते हैं, बट ये सच नहीं है. योगा मतलब भक्ति योगा. योग मतलब लिंक करने का, वियोग मतलब विरह, योग करना एडिशन. क्या एडिशन करना? कृष्णा. तो योगा मीन्स एक्चुअली भक्ति योगा. ये बहुत क्लियर है. लेकिन जब आदमी को इंद्रिय भोग की इच्छा प्रबल हो जाती है और उसका भक्ति रुक जाता है और उसको कर्म कांड में ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है, तो वो फिर कर्मयोग बन जाता है. वो भक्ति एक्चुअली डेवलप हो गई कृष्ण के चरण में जाने का, लेकिन उसको पर्सनल प्रॉफिट चाहिए, कुछ इंद्रिय भोग की बहुत इच्छा हो गई, तो वो भक्ति योग नहीं रहता, कर्मयोग हो जाता है. और दूसरा आदमी जो बहुत स्पेकुलेट करने लगता है, हेलुसिनेट करने पड़ता है, जो कृष्ण की सेवा से मतलब नहीं है, उस ज्ञान को पकड़ना चाहता है, वो ज्ञान योगी हो गया. क्या? और ज्ञान योगी ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आज शरीर नहीं आत्मा, वहाँ तक पहुँच पाते हैं. कर्मयोगी ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य आत्मा बन जाते हैं, बस, है ना. लेकिन असली योगी तो भक्ति योगी है, और भक्ति योगी में ऑलरेडी ये सब है. इसलिए भगवत गीता में कृष्ण जी भक्ति योगा को, प्योर भक्ति योगा को डिलीवर करने से पहले कर्मयोग, ज्ञान योग, स्टेप बाय स्टेप ही इज डेवलपिंग एंड ब्रिंगिंग टू प्योर योगा. So Prabhupada said these are like a stepping stones, Karma Yoga, Jnana Yoga for general society. Next thing was study of the Shastras also. Therefore Prabhupada said actually, अगर मैंने खाली एक किताब लिखी होती तुम उसको पढ़ो. बहुत लोग इसको समझते नहीं है, अहंकार के कारण समझते नहीं है और उसके बाद भटक जाते हैं. Because not only Prabhupada is writing, Prabhupada जी तो इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं ना. He is giving orders, he is giving instructions. उनका दिल है. These books are his heart. So there is clear direction. So Shastra, just to study Shastra, that is not the way. Prabhupada is to say who is writing. So ठीक है. So coming back to the Shastra, Prabhupada quotes a shloka here. Vedeshu durlavam adurlavam atmabhakta. Krishna is very difficult to understand just by study of the Vedas. नहीं होगा. इसलिए Prabhupada used to say, कृष्ण को कितना समझ सकते हो, सेवा करो. Don't try to understand Krishna too much. Try to love him. Too much technical जाने में and not performing devotion service, that becomes another kind of unwanted thing. Correct? Too much. You cannot. How much you will understand Krishna? Krishna is impossible to understand. Even Krishna cannot understand himself. Therefore he became Chaitanya Mahaprabhu. He cannot understand himself. It is so difficult. Okay? So therefore there is a connection. Here Shastra. I'll just read so that I take the line from Prabhupada. He says, such wise men hardly bother with Vedic study. Indeed, they engage themselves in practical devotional service. Okay? So, if it's not that Vedic study will not help us, Bhakti Yogena Manasi, if it is done in devotional service, then Shravanam is the highest quality, no doubt. Prabhupada books will make us tremendously advanced in devotional service. That is not a doubt. But suppose it is not done in devotional spirit, then academic reading of the books will not help us. Correct? Sometimes some people read books. Bhagavad Gita Prabhupada says, before reading Bhagavad Gita, you should at least accept theoretically that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. I remember we gave someone college, somebody purchased Bhagavad Gita. So after 2 weeks I met that boy. I said, how is it? Did you Bhagavad Gita पढ़ा क्या? हाँ मैं पढ़ा. हर पर्पट में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र जप करो, डिवोशन सर्विस करो, हरे कृष्ण मंत्र जप करो. Because he is reading academically. He is not reading with proper respect. So you will not be able to feel. Just like कीर्तन. अब कोई बाहर के आदमी, मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड, हमारे जन्माष्टमी में आते हैं, हमको तो कैसा लगे जन्म कि एक ही मंत्र जप करते हैं आप, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. बहुत लोग बोला मेरे को, आप लोग के एक ही कीर्तन है, आप लोगों को कुछ और है ही नहीं. बिकॉज ही इज नॉट प्रॉपरली पार्टिसिपेटिंग. व्हाट फॉर अस वी ऑलवेज फील 12 o'clock केम सो अर्ली, थोड़ा और कीर्तन होना था. उस लोग के एक ही कीर्तन चल रहा है. मेनी टाइम्स इट हैपेंस. सम कॉलेज ऑल्सो ऐसे, व्हाई डोंट यू कम? सर वो 20 मिनट तक चलता रहता है आपका हरे कृष्ण. वो भी हम कम करते हैं उसको, तब भी चलता रहता है आपको एक ही कीर्तन. दैट इज द सिचुएशन. The people have some other kind of, because they are not coming with the proper devotion. It is said, अगर प्रभुपाद जी का किताब पढ़ना है तो एक चाबी चाहिए, चाबी.
ये कॉन्फिडेंशियल है, गुह्य, बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ है. भागवतम इज परमहंस संहिता. ये चाबी इज respect. If we come with respect and devotion to read these books, then these books will open out. The nectar will open out. Otherwise, it will remain benefit is always there. Anybody touches these books also, he is purified. You read one line also, you are purified. But to feel the real benefit, we have to do it without any offenses. Just like the safarad hote Harinam mein. And we have to read with respect the words of the Acharya. Then you will not find repetition. You will find nectar. Otherwise, क्या हर पर भक्ति करो. Same way also bhakti karo. And Bhagavatam is supporting that. Now Bhagavatam is saying that just people who are just interested in academics, हाँ वो एक उपनिषद को उधर पढ़ लिया, उधर वेद पढ़ा, उधर एक उसका टीका पढ़ा, एक वल्लभाचार्य का पढ़ा, एक उसका पढ़ा. Some people are very interested in all those things. But if they are not devotionally oriented, that means they are not reading in a proper devotional spirit. Correct? We have to be reading it properly. It has to be read. Therefore, Prabhupada said, somebody said, I was reading that book. Prabhupada said, who has written? Who has written? Correct? It's very important. Who had explained it? Just for academics' sake, we have so many people who read 18 Purana, then they're totally confused. What is his fault? His fault is the guidance of the Acharya. Just like हम कोई किताब पढ़ते हैं, टीचर जरूर चाहिए ना. तो हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं. Prabhupada has given the purport, is acting like a teacher. Correct? So with the teacher guidance, you are understanding Bhagavatam. You are getting clear guidance. But if you don't have a teacher and you try to study some books, then you will get confused. And that is the condition of so many. So Vedeshu dullabam adullabam atmabhakta. So Prabhupada used to say, don't try to understand Krishna too much. Try to serve him. Try to love him. Just like the gopis in Vrindavan. It's not that don't try to know Krishna. It's a balance now. We cannot go either extreme. We try to learn Krishna, and with the devotion of spirit, when we hear Prabhupada, that is so pleasurable, and we drink the nectar. But not having the devotion of it will not help. Vedavyasa also said, Bhakti yogena manasi samyak pranihite amale apashyat purusham purna maya tatapashayam. Bhakti yogena manasi. With the mind, in a devotional spirit, he thought about Krishna. So in a devotional spirit, with respect, when you read Srila Prabhupada books, then it's a nectar. Then you cannot stop it. It's a pleasure. You can keep drinking all the time. And that is the most important thing. It is said, one's spiritual advancement is known by how much eagerness we have developed for drinking this rasa. We are discussing at the first canto of Srimad Bhagavatam, the third verse. What is the third verse? Nigama kalpa. Then Nigama kalpa taror galitam phalam shukamukad amritadavya samvitam. Then Bhagavata rasamalayam aho bhuvi rasika bhuvi bhavakaha. So Prabhupada says, become this rasa, drink this rasa. Society, what is happening? ये 12 रस हैं आपके जो मिलते हैं. साक्य रस, शांत रस, दास्य रस, वात्सल रस, माधुर्य रस, और 7 सेकेंडरी रस, हास्य, दैट डिफरेंट काइंड ऑफ 7 सेकेंडरी. ये 12 रस सोसाइटी में मिलते हैं. आपकी जितनी मूवी हैं सोसाइटी में, ये उसका इमिटेशन है. ओरिजिनल रसा इधर है. तो जो आदमी ओरिजिनल रसा ड्रिंक करने लग गया, उसको ये दुनिया के रस में इंटरेस्ट नहीं आता. So that means he has advanced. The symptom of spiritual advancement is, Prabhupada says, he developed taste for the original rasa. Nigama kalpataror galitam phalam shukamukhat amritadava samritam pibada bhagavata rasamalayam. He's saying drink. Drink. But if you are not studying Bhagavatam and simply studying other Vedic literatures, that also without any devotion spirit, under the guidance, without any guidance, that will not be good. Correct? So, Nigama kalpataror galipathapalam shukamakad bhavar pibata. Prabhupada used to say, keep drinking. One lecture he says, both rising and setting, the sun is taking one day of your life. सूर्य उदय होने से अस्त होने से आपका एक दिन ले लेता है, गया, वो दिन वापस नहीं आएगा अभी. लेकिन जो आदमी भागवत पढ़ रहा उसका नहीं लेता, उसका दिन नहीं लेता. वो प्रभुपाद जी बोला तो बोला क्या नहीं लेता? प्रभुपाद जी बोला वो मरने वाला नहीं है. मरने वाला नहीं, सभी लोग मरते नहीं, वो मरेगा नहीं, वो तो जिएगा अभी, वो तो भी जिएगा.
वो मरेगा नहीं, वो तो असली जिएगा, वैकुंठ जगत जाएगा, मरेगा नहीं, जीता है, उसका मरण नहीं है। वो बिल्ली का एग्जाम्पल है ना, चूहे को बिल्ली पकड़ती है और अपने बच्चे को पकड़ती है, उसका मरण है जब बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, उसको उतना मृत्यु का ऐसा आभास नहीं होता। करेक्ट? हर आदमी मृत्यु से डरता है, वो नहीं डरता, वो तो भागवत पढ़ रहा है? तो उसको किस चीज़ का डर है? तो हम लोग तो इस स्थिति में नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, महान भक्त तो बोलते हैं मृत्यु आओ, मेरे को वैकुंठ धाम जाना है, लेकिन हम नहीं, हमको तो डर लगता है, मेरे को नरक जाना है, हमको तो पता नहीं, अभी रेडी नहीं है, अभी कृष्णा अभी नहीं, थोड़ा और टाइम, अभी बिल्कुल नहीं, भागवत नहीं पढ़ा, ढंग से जप नहीं होता, अभी थोड़ा टाइम दो। ठीक है? तो हम लोगों को ये चीज़ समझने का इधर कि पीबत भागवत रसमालयम, भागवत ने बोला है इस रस को पियो। तो सब लोग को कोशिश करना चाहिए दिन में कि इस रस को पिए, जितना टाइम मिले पिए, इसको पीजिए। ठीक है? लेकिन जस्ट नॉर्मल वैदिक लिटरेचर्स को पढ़ना, टू फोकस ऑन कर्म कांड, ज्ञान कांड, इवन उपासना कांड, इतनी देवी देवताओं का पूजा, वो आपको फायदा नहीं होगा उससे। आप टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना। ठीक है, उधर एक पता चल गया, उधर एक पता चल गया, चीज़ें की पता, बस उसी में लगे रह जाओगे, उससे क्या करना है। जैसे एनी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, उससे मैं भगवान की सेवा इंप्रूव होती है, ठीक है, और बाकी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। बहुत इन्फॉर्मेशन है, किस डायरेक्शन में बैठने का, वास्तु का ज्ञान है, वेद में तो कोई इतना ज्ञान है कि आप बंद नहीं कर सकते, इतना ज्ञान है। अरे ये भी पता चल गया मेरे को, ये पता चल गया, करते रहो। हमारी जो सेवा है उसके लिए इन्फॉर्मेशन दो, हमको इंटरेस्ट है बस। करेक्ट? और भागवत को ड्रिंक करो। भागवत क्या है ये? इसको इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसको क्या बोला है? अमल पुराण बोल रहा है। वेदव्यास जी खुद सारे वैदिक लिटरेचर लिख के, महाभारत लिख लिया था, 4 वेद लिख लिए थे, वेदांत सूत्र लिख लिए थे, और 17 पुराण लिख लिए थे हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। इतना महान कार्य करके बद्रिकाश्रम में एक छोटी सी केव में वहाँ काम करके भी उनको संतोष नहीं मिला था। तो प्रभु जी बोलते हैं वो उनको संतोष नहीं मिला जिसने लिखा है, जो सुनने वाला उसको कैसे संतोष मिलेगा? कह रहे? तो प्रभु जी बोलते हैं कोई फ़ायदा नहीं इसको। तो नारद जी ने उनको बोला कि तुम भागवत लिखो, और उन्होंने खुद भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम माया तत्पाशयम। उन्होंने भक्ति योग में भगवान पे ध्यान लगाया और उनको भगवान का दर्शन मिला, फिर उन्होंने भागवत लिखा है। तो भागवत तो ये हाईएस्ट वर्क है वेदव्यास का। वेदव्यास खुद बोल रहे हैं भगवत श्रीमद् भागवतम में कि इसी को पढ़ो तुम, किम वा परे, किसी और ग्रंथ की जरूरत नहीं है। ठीक है? इस्कॉन में जो भी किताब है भागवत के स्थापित है। गीता की कमेंट्री भी भागवत के अनुसार है, वो भागवत कमेंट्री है, भगवत गीता है। उपनिषद सब कुछ हमने भागवत के आधार पर लिखा है, यही हमारा आधार है, यही हमारा फाउंडेशन है। तो बाकी वैदिक लिटरेचर्स को जनरली लोग पढ़ते हैं, गाइडेंस होना चाहिए, भक्त का गाइडेंस। कोई भी पढ़ते हो गलत नहीं है कोई चीज़, भक्त का गाइडेंस है क्या, वो नहीं होता। तो इसलिए हमारे इस्कॉन में हमको प्रभुपाद जी ने भगवत गीता परपट के साथ अच्छे से अंडरस्टैंडिंग दिया है। कृष्ण का लीला लिखा भागवत का, है ना, बहुत। आप कभी लगता है कृष्ण का लीला कैसे समझाएंगे आप, हम पढ़ने लगो इकट्ठे लगता है कितना ध्यान से समझाएगी, आज कोई आदमी गलत समझ ही नहीं सकता उसको, है ना। तो सेम वे आपको भागवत को, चैतन्य चरितामृता, इन किताबों को ही पढ़ने में आपको ज़िंदगी लग जाएगी, उतने में आदमी को संतोष रहना चाहिए। ठीक है? सो दैट इज अनदर पॉइंट, वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मा भक्तो। भगवत गीता में भी इस चीज़ को कृष्ण जी 2 बार ही बात करते हैं। जनरली लोग ये सोचते हैं कि वेद इंपॉर्टेंट है और पुराण, गीत, महाभारत ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं, वो लोग मंदिर नहीं जाते, भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं करते वो लोग, है ना। तो प्रभुपाद जी उस पर कमेंट करते हैं, नहीं ऐसा क्यों बोलते हो, भगवत गीता में क्या बोलते हैं कृष्ण? याम इमाम पुष्पितम वाचम। अरे अर्जुन, ये वेद के जो शब्द हैं, पुष्पितम वाचम, ये जो फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेद है, उससे अट्रैक्ट नहीं हो जाओ। क्यों अट्रैक्ट नहीं हो जाओ? अरे यहाँ ये पूजा करो, ये हवन करो, उस स्वर्ग में जाओगे, इतनी सुंदर अप्सरा मिलेगी, इस चीज़ों से बहक नहीं जाओ अर्जुना। क्योंकि अर्जुन बोल रहे थे, अरे कृष्णा मैं ये करूँगा ये तो पाप कर्म हो जाएगा, पाप कर्म होने से मैं स्वर्ग नहीं जाऊँगा, नरक जाऊँगा। तो भक्त थोड़ी ये सब सोचता है, भक्त तो कृष्ण की सेवा करना चाहता है, स्वर्ग या नरक वही थोड़ी कैलकुलेशन करता है। अरे कृष्ण की सेवा करते करते नरक भी चले गए, नरक नहीं जाओगे, वैकुंठ धाम जाओगे, वो ये कैलकुलेशन नहीं करता। वो तो ऐसा कैलकुलेशन कर रहा था। तो कृष्ण बोला, अरे याम इमाम पुष्पितम वाचम, ये क्या फ्लावरी वर्ड्स हो तो वेद है। और एक और बारी कृष्ण जी बोलते हैं दूसरे टाइम क्या,
त्रैगुणीय विषय वेदा निस्त्रय गुणीय भवार्जुना। ये जो वेद है काली 3 मोड्स की बात कर रहे हैं। जैसे इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, ये दुनिया का क्रिएशन होने के बाद वेद तो मैनुअल है। जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल के साथ एक मैनुअल आती है इसको कैसे यूज़ करने का। तो सेम वे इस दुनिया में सृष्टि के निर्माण के बाद सृष्टि के साथ साथ आपको वेद मिले थे। इसलिए वेद का हिस्ट्री नहीं है बाकी रिलीजन के जैसे। कुछ रिलीजन का 500 साल, 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल ऐसे हिस्ट्री है। वेद सनातन धर्म है, इसका कोई हिस्ट्री नहीं है। इसका तो सृष्टि के साथ निर्माण साथ दिया गया था। और ये तो अभी हम पढ़ रहे थे, तरह तरह से समझाया गया है। हाय भगवान के ब्रीदिंग से आया है, करेक्ट। अभी हम हाय ग्रीवा का ग्लोरिफिकेशन उनका भी ब्रीदिंग से, पूरे वेद के सुंदर मंत्र बाहर आते हैं, करेक्ट। भगवान की ब्रीदिंग, वेद को भगवान का ब्रीदिंग बोला जाता है, ठीक है। उनके श्वास से वेद निकले हैं पूरा। हमारे श्वास से तो बदबू निकलती है उनके श्वास से पूरे वेद निकले हैं। हाँ, तो ये वेद का ज्ञान हो गया। और वेद में जनरली क्या दिया गया है, कैसे उस दुनिया में ढंग से रहो। जैसे आपको मोबाइल दिए, कैसे मोबाइल को यूज़ करो, लेकिन इस जेल से कैसे निकलना है ये ज्ञान नहीं दिया है। दिया है लेकिन सीमित है, उसमें फोकस नहीं है ज़्यादा। क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष है, लेकिन मोक्ष की अलग अलग विधि के बारे में फोकस नहीं बताया। वो धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मिक्सअप हो गया। हाँ? लेकिन अगर आप भागवत में देखेंगे तो भागवत में कैसे उस दुनिया से निकल के भगवान के भगवत धाम में जाना, उसमें फोकस है। जैसे एक किताब आपको बता रही है जेल के अंदर कैसे रहने का है, और एक किताब बता रही है जेल के बाहर कैसे निकलने का। कौन सी किताब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जेल के बाहर कैसे निकलने का है, करेक्ट। और जेल के बाहर निकलने के लिए आपको राजा का सेवक बनना पड़ेगा, राजा के नियम का पालन करना पड़ेगा। जब तक आप राजा के नियम का पालन नहीं करोगे, वो जेल के बाहर आपको नहीं निकलने देगा, करेक्ट। तो सेम वे जब तक हम भगवान के नियम पालन करना नहीं चाहेंगे, जब तक हम भगवान के भक्त नहीं बनेंगे, हम वैकुंठ धाम नहीं जा सकते। तो खाली वेद का जो स्टडी करता रहेगा, वो एक पुण्यात्मा बन जाएगा बस, लेकिन वो इस जेल के बाहर नहीं जा पाएगा। ये पॉइंट है, ठीक है। लेकिन भागवत को पढ़ने में आदमी के दिल में भक्ति उत्पन्न होगा। सद्यो हृदय अवरुद्धते तत्क्षणात्। अब भागवत पढ़िए, घंटों पढ़िए, पूरे दिन पढ़िए। इससे आपको रसमाल है, उस रस को पीजिए, मजे से पीजिए। और उससे क्या होगा आपको? पीबद भागवत रसम निगम कल्पतरो और गलितम फलम। ये वेद का ही भाग है भागवत, लेकिन ये राइपन फ्रूट है। और इससे क्या होगा आपको? गलितम फलम। बहुत इसका टेस्ट अलग ही है। और इसका टेस्ट एक बार आपने चख लिया, ठीक है, उसके बाद आपको वो पीबत रसमाल है, उस रस को ही आप पीते रहेंगे, मुँह उसी को याद करके उसी को आप पीते रहेंगे, ठीक है। एंड देन आप भगवत धाम चले जाएंगे, ठीक है ना। समझ आ गया? तो वेद की स्टडी आपको सीमित रहेगी। आपको त्रैगुणीय विषय वेदा निस्त्रैगुणीय भवार्जुना। ये दुनिया जो है, ये हम इस दुनिया में बधे हुए हैं 3 मोड से। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर आप इसी मोड से बधे रहेंगे तो आप बाहर कैसे जाओगे? बाहर जाने के लिए आपको भागवत जरूर पढ़ना पड़ेगा। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। कृष्ण के जो भक्त हैं वो आपको इस दुनिया से मुक्त कर सकते हैं और भगवान के चरण में ले जा सकते हैं। तो इसी तरह से सोसाइटी ऑर्गेनाइज होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम